Hello, everyone. Welcome to the second part of the second chapter that we were revising, Geography NCRT class ninth standard. So, we had done some part of it already in our part 1 that you can refer to, and we had done till the Purvanchal. Okay. So, Himalayas we had done from the physical features. So, let me once just review. So, the topics covered were physical features of India. So, these are the what are these? Major physiographic divisions. All right. Major physiographic divisions, and how many are there? So you have major six, yeah, major six physiographic divisions of India. Okay. And we learn about what are the physiographical features, first of all, in the introduction, and how India has diverse set of physiographic features. Okay, and prominent ones being these six types, and within them there are various types of relief features that we are studying. So Himalayas we had already done different types of classifications. For example, from northern to southern side we had seen Himadri, Himachal, and Shivaliks. Then we studied about dooms and passes, okay, glaciers, and such other things that exist in Himalayas. Also the western to eastern categorization, for example, Kumaon Himalaya, Punjab Himalaya, Kashmir Himalayas, Nepal Himalayas, okay, Assam Himalayas. So all of these we studied. Then after the Arunachal, it turns to southern direction, and we have Purvanchal. Okay, this was the last point that we saw. So Purvanchal, and what all Purvanchal comprises of? So these are Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills, and Mizo Hills. So if you refer to the map, okay, so here you have Patkai Hills in the Arunachal Pradesh, then you have Naga Hills and Manipur Hill. Okay, that's almost a continuous range. So in Nagaland, and then you have in Manipur, and then you have in Mizoram, Mizo Hills. Okay, with some gap. And if you see here, here also important mountain ranges are there. Now Garo Khasi Jaintia. So if you see in the map, Garo Khasi Jaintia is not part of Purvanchal. It is not part of Himalayas. So this part is an old mountain range. It is not part of Himalayas. That is to be kept in mind. Okay, coming to the next geographical feature, northern plains. So that is also very important. So northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems. What are they? Indus, Ganga, Brahmaputra. So let's see in map once. So we have the northern, you see, it is extending from here. This region is Pakistan, but this is part of northern plains. Geographically, if you see, the northern plain extends in Pakistan as well. The Indus plains are here also, Punjab plains. In fact, the majority is here. So northern plains is extending here and also in this region of Brahmaputra Valley, not the mountainous region, the plain region below that. So this plain is formed of alluvial soil deposited by these river systems. The deposition of and their tributaries. Okay, so their tributaries are also important from exam perspective, and you should try to find larger maps of physical maps of India and try to locate most of the important tributaries, their way of flowing on the map. Okay, that will give you a fairly good idea of if they are passing through which kind of states, are they passing through borders of state, are they situated on some wetlands, wildlife sanctuaries, national parks. So all of those things can only be gained through maps. So try to locate the river systems and tributaries on map in a vast way. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. So how this plain has formed, we will study in higher classes more about this. So we studied that the fold mountain happened. Okay. So Indian plate was moving like this, and there is Eurasian plate. Mm. So due to the compression, folding happens.
So on one side you have Himalayas that formed upliftment. So if you see the folding process, then there will be, if this is crest, there will be trough formation. So another side basin will be created. Now the Himalayas rivers were flowing, and these rivers came to basin, passes through basin. So ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में इन रिवर्स ने क्या किया, डिपॉजिट करना शुरू किया, और डिपॉजिट करते करते इसको फिल कर दिया सेडिमेंट से. तो ये जो बेसिन्स क्रिएट हुए थे, दीज बेसिन्स have become the northern plains. So that is the process, and that's why the plains have formed after the Himalayas. So Himalayas are themselves very young, and basins and northern plains are even younger than that because they have formed after the formation of Himalayas. Now, what is the extent of this plains? 7 lakh square kilometer. That is the area. Area is 7 lakh square meter. And if you see the dimensions, you have length is 2400 kilometer long, and width is around 240 to 320 kilometers. Suppose if you see in the map, so broadly if you see, so it will be like geographical division. So it will be like this, right? It is like this. So length is in this direction and width will be in this direction. Now, what other characteristics are there? It is a densely populated. Densely populated because there is availability of water, there is availability of fertile soil, there is availability of suitable things required, suitable climate required for agriculture. So agriculture is there, food is available, water is available. So obviously terrain is habitable. So obviously population will be large in these areas. Similarly, the situation you will see on coastal regions. Coastal regions also favor large populations. They support large populations. Okay, with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. So the dominant activity, if you find out, if you see the economic activities region wise, you will see that the dominant activity, economic activity, is still prevalent in these regions is agriculture because of this. The rivers coming from northern mountains are involved in depositional works that we have seen. In the later course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. अब ये क्या चीज आ गई? तो ये बता रहा है कि जो रिवर्स हैं वो हिमालय से आ रही हैं, ठीक है, हिमालय से रिवर आ रही हैं, और यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ डिपोजिशन एक्टिविटी, यहाँ तो इरोजन एक्टिविटी ज्यादा प्रेवलेंट रहेगी. जहाँ स्लोप ज्यादा है, where the slope is more, erosional activities will predominate because the speed is more, momentum is more, kinetic energy is more with water. So erosional activity will take place on the higher slope. And then the moment they enter the plain, deposition activity will start. First the larger sedimentary particles, then the finer, and gradually most of the sediments will be deposited. In the later course, when it reaches almost near the sea, ocean, there you will see that most of the deposition, because speed becomes very slow. यहाँ पे angle बहुत कम हो जाता है, speed बहुत कम हो जाता है, तो most of the deposition will take place. उससे क्या होता है कि you will see that suppose this is the river, तो बीच में ही depositions हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे कि sandy regions हैं जो कि soil surface है, ठीक है, और दोनों साइड से streams flow करनी है. Similarly यहाँ पे भी तो स्ट्रीम्स बहुत सारे छोटे छोटे उसमें बट जाएगी, इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है, और बीच में बड़े बड़े आईलाइन टाइप के क्रिएट हो जाएंगे जो कि डिपोजिशंस हैं, बिकॉज ऑफ डिपोजिशंस, एंड फर्दर दे विल क्रिएट रेसिस्टेंस, तो वहां पे और डिपोजिशन होगा, तो ये आइलैंड्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं, और इनके अराउंड रिवर जो है कई सारे स्ट्रीम्स में बट जाती है. उन स्ट्रीम्स को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, और इन आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? रिवरिन आइलैंड्स.
ओके, ये जो टर्म आप देख रहे हो इनको बोलते हैं रिवरिन आइलैंड्स. So that's what is being mentioned here. Now, so one of the important such riverine islands you will hear name, especially when floods come in Brahmaputra River, then you will hear this name in the newspaper, Majuli Island. So it is the largest riverine islands in India, right? Riverine island in India, the largest in the world. It's not the largest in the India only; it's largest in the world. Means एक river में जो island हो सकता है, तो उनमें ये सबसे बड़े साइज का है पूरे वर्ल्ड में. Majuli Island, that is in Assam. The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. हमने अभी देखा. The northern plain is broadly divided into 3 sections. नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में मान सकते हैं, ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज हमने देखा था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ में क्या डिवीजन था? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. वेस्ट टू ईस्ट में क्या डिवीजन था? बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे. वन ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज, पूर्वांचल, ठीक है. वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन को भी ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट आर दो सेक्शंस? वेस्टर्न पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन्स. वहां जैसे पंजाब हिमालयाज बोल रहे थे, तो पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. तो ज्यादातर आप देखोगे पाकिस्तान में है. और इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज. ये सारे ही ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? इन द हिमालयाज. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स. अब यहाँ पे देख लीजिए एक अच्छा सा दोआब का मीनिंग बताया. दोआब इज मेड अप ऑफ 2 words. दो मीन्स 2, वी ऑल नो. आब मीन्स वाटर, ठीक है. सिमिलरली पंजाब इज मेड ऑफ पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर. Let's refer to the map. So Punjab plain आप देखो, Punjab plain is, this is Punjab plain mostly. So if you see Indus river, Indus यहाँ से कहीं से originate होती है. You have to trace these in map. Or we change the color. So Indus originates from somewhere here and then flows like this. ठीक है, यहाँ flow कर रही है. Similarly Jhelum is coming from somewhere here. चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ये सारे जाकर के इंडस में ही मिल रहे हैं. और ये फाइनल रिवर है, इसका भी नाम इंडस ही है, ठीक है. और इन 5 नदियों का जो ये प्लेन बन रहा है, दैट इज पंजाब. इफ यू सी ऋग्वेद, ऋग्वेद मेंशंस सप्त सिंधु, द रीजन दैट वाज इनहैबिटेड बाय आर्यंस, that was also somewhere in the northwest India only. So that region was Sapta Sindhu, that is referred as Sapta Sindhu in Rigved. So that is also what? That is also around this only, and 2 more rivers were there. You see Saraswati and one more river will be there. Sapta Sindhu, area of 7 rivers. Okay, so after covering the Indus plains, now we are coming to the Ganga plains. So Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta. So in the west side you have Ghaggar and in the east you have Teesta, और इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसमें उसको गंगा प्लेन्स बोल रहे हैं, जिसको कि गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी रिवर्स दे आर क्रिएटिंग दिस प्लेन. ओके, स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा. स्टेट्स देख लीजिए, प्रोमिनेंट स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो ब्रह्मपुत्र प्लेन की ही बात कर दे रहे हैं. यहाँ गंगा प्लेन की बात चल रही थी और ब्रह्मपुत्र, तो आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन है. सो दैट इज बट ऑब्वियस. तो तीस्ता के बाद जो भी एरिया है, दैट यू कैन क्लासिफाई द प्लेन एरियाज, not the hilly regions, the plain areas you can classify as Brahmaputra plain. Let's see once in the map. Okay, so you have Ghaggar will be somewhere here.
Okay, Haryana is also included, so Ghaggar somewhere here, you can count, and Teesta will be somewhere here in the Sikkim region. So between that you have Ganga plains, okay, and Brahmaputra plain you can see in this region. So these are the prominent divisions. Now, the northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. तो impression क्या बनता है कि plain है तो बहुत ज़्यादा इसमें relief नहीं होगा. Relief क्या बोलते हैं? Relief means कि जो surface का structure है, कोई एक land piece है, तो इसमें surface का जो structure है, उसमें land को आप कैसे, if you have to describe someone about this land, what are the features of this land? So you will tell about the surface features. So those are all the relief features, right? So plain बोलने से क्या impression बनता है कि flat land है and there is no variation in its relief, but it is not true. These vast plains also have diverse relief features. जो ये plains हैं इनमें भी बहुत तरह के relief features मिलते हैं. अब उनके बारे में थोड़ा सा briefly हम लोग देखेंगे. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. तो अभी हमने classify किया था based on the rivers which are creating these river basins. Based on river basins or watersheds, we were dividing the plains. Now we are classifying based on relief features. So based on relief features, northern plain can be divided into 4 regions. ठीक है, 4 types of classification. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. This is known as Bhabhar. So let's go to map. So if you see, this is the Shivalik range, right? This is the Shivalik range. So if you 8 to 16 kilometers parallelly, if you follow, right? 8 to 16 kilometers parallelly, if you follow, this will be the reason. तो यहाँ क्या होता है कि because rivers are coming down, coming down the Himalayas, so they have much more kinetic energy and speed. So they are carrying even stones and boulders with them. Stones and boulders are also coming down. So reaching this region, which is the Terai region, 8 to 16 kilometer width, here they will deposit the larger particles, not particles, larger rock materials. So boulders and stones are deposited here, pebbles. Okay, so this region, हाँ इसको भाबर बोलते हैं, ठीक है. Width lying parallel to the, इसको भाबर बोल रहे हैं. All the streams disappear. तो अब चूंकि बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उनके बीच में गैप्स ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स जो स्ट्रीम आ रही थी वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो नीचे से फ्लो कर रही है क्योंकि नीचे स्टोन्स के बीच में काफी गैप होते हैं, उसके थ्रू वो रिवर फ्लो करेगी स्ट्रीम. सो भाबर बेल्ट, यहाँ पे रिवर आपको नहीं दिखाई देगा. साउथ ऑफ दिस बेल्ट, अब इसके साउथ में आते हैं तो द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज. ये स्ट्रीम्स जो हैं वापस ऊपर आ जाएंगी जैसे ही वो स्टोन बेल्ट वाला एरिया खत्म होता है, पेबल्स वाला, एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन. अब यहाँ पे वेटलैंड क्रिएट कर रहे हैं ये, तराई जिसको नाम बोल रहे हैं, नोन एज तराई. तराई हमारी लैंग्वेज में इसका नाम है, ठीक है. और ये कैसा है, ये दलदली टाइप का एरिया है क्योंकि बड़े पार्टिकल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, प्लस स्ट्रीम्स वापस सरफेस पे आ गए अर्थ के, तो यहाँ हमेशा पानी में डूबा रहेगा और थोड़ी मिट्टी भी ज्यादा है, तो एकदम रिवर की तरह भी फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन दलदली एरिया है, वेटलैंड्स है. सो दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब चूंकि यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल हैं, पानी भी है, क्लाइमेट भी फेवरेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, सॉइल भी है अवेलेबल यहाँ पे, तो दिस इज यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड, घने जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ है. तो जितने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वगैरह आपने सुने होंगे, नेशनल पार्क, सो दोज आर हियर, दोज आर फाउंड हियर, एंड रिच वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो प्रेजेंट. द फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड. अब इसमें जब लोगों को बसाया गया तो क्या हुआ है, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड. फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर भी यहाँ पे की जाती है, एंड सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. पार्टीशन के बाद माइग्रेंट्स को यहाँ भी सेटल किया गया था. लोकेट दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, मैप में आप इसको सर्च कीजिए, आपको तेराई रीजन मिल जाएगा. प्लस
जब एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया है तो ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर वेटलैंड्स एंड इन वेटलैंड्स यू नो दैट crops which require huge amount of water, okay, so such crops will be can be easily grown in these regions. तो इसलिए तराई रीजन में आप देखोगे शुगर केन की, दैट इज गन्ना, और राइस, इसकी धान की खेती होती है बहुत इजीली, बहुत अच्छे से. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. ठीक है, जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है. It lies above the floodplains of the rivers and presents a terrace-like feature. It lies above the floodplains of the rivers and presents a terrace-like features. तो ये जब आप 11th क्लास में लैंड फॉर्म पढ़ोगे और लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर्स पढ़ोगे तो उसमें ये टेरेस वाले स्ट्रक्चर भी आएंगे आपको. तो होता ये है कि रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो सपोज ये फ्रंटल व्यू है रिवर का, तो वो नीचे भी इरोड करेगी रिवर अपने बॉटम को, इरोड करते करते, ठीक है, रिवर नीचे की तरफ शिफ्ट होगी. तो यहाँ पर जो है टेरेस लाइक फीचर दोनों बैंक पे, दोनों ही किनारे पे एक टेरेस लाइक फीचर क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ क्या है, यहाँ जब पहले फ्लड आई थी तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हुए थे पुराने समय में. अब रिवर नीचे फ्लो कर रही है या फिर रिवर कहीं और मूव कर गई है, रिवर का कोर्स भी चेंज होता रहता है. तो अगर रिवर कहीं और मूव कर गई है या फिर रिवर नीचे डाउनवर्ड कट करके टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे पुराना एलुवियम आपको मिलेगा. ये सॉइल जो है recent deposits, these are not recent deposits because river has moved away from this place. So these are the old alluviums. So most of the plains you find are old alluviums. Only the areas nearby the river, they will have new alluvium where the river overflows once in a while and deposits fresh soil. Okay. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं भांगर. भांगर इज ओल्ड alluvium. That you have to keep in mind. Older alluvium is bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits. What is the property of bhangar? Calcareous deposits इस soil में मिलते हैं, known as कंकर. ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो न्यू alluvium होगा that will be sediments of finer particles. तो वो एकदम फाइन पार्टिकल होगा. नदी के किनारे आप जाते हो तो वहां पे फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है. The newer younger deposits of the floodplains are called खादर. तो न्यूअर वाले को क्या बोलते हैं, खादर, और ओल्डर वाले को भांगर. सो दैट यू हैव टू माइंड. क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली आते हैं, खादर एंड भांगर. भांगर इज द न्यू, भांगर इज द ओल्ड एंड खादर इज द न्यू एलुवियम. तो खादर कहाँ मिलेगा, ये जो अभी रिवर्स फ्लो कर रही है उसके पास मिलेगा, और भांगर कहाँ मिलेगा, जहाँ पहले रिवर फ्लो करती थी वहां से थोड़ा डिविएट होकर चली गई है, तो पुराने डिपॉजिट्स हैं वहां. और इसमें क्या मिलता है, कैल्सरस डिपॉजिट्स कॉल्ड कंकर. So these are the few important key terms used that you should keep in mind. So Khadar, so what is being said here about Khadar? They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. तो अगर आप बिहार की न्यूज़ देखते होंगे तो फॉर एग्जांपल कोसी रिवर, सो ऑलमोस्ट एनुअल बेसिस पे फ्लड्स आते रहते हैं, ठीक है. और जब जब फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, न्यू डिपोजिशंस विल हैपन. तो दो फ्लड्स हैव मेनी नेगेटिव थिंग्स. अगर फ्लड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपको बताने हो तो देर आर वेरियस नेगेटिव थिंग्स. फॉर एग्जांपल इट डिसरप्ट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड हार्म्स देम. बट पॉजिटिव्स आप जब गिनाओगे तो ये है कि ये न्यू डिपोजिशंस करता है विच इज वेरी फर्टाइल एंड दैट्स व्हाई इट फेवर्स एग्रीकल्चर. सो समहाउ इफ इट कैन बी प्रिवेंटेड. सो और तो आपने ये भी देखा होगा कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है कि रिवर्स के फ्लड प्लेन्स में बहुत लोग रहने लगते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस एंड पॉवर्टी. फ्लड प्लेन्स में सोसाइटीज बस जाती हैं. फिर क्या होता है, फ्लड कहाँ आता है, यहीं पे आता है. तो जैसे ही बारिश थोड़ी ज्यादा हुई तो बिकॉज फ्लड प्लेन्स मीन्स ये गहरा एरिया है तो वहां सबसे पहले पानी भरेगा, तो वहां पे लाइफ एंड
वो डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में लोग रहने लगते हैं, विच शुड हैव बीन आइडियली लेफ्ट, कि ऐसे सिचुएशन में पानी वहां से बह सके, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस आर आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। जब लोग रहते हैं तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं, तो पानी का फ्लो नेचुरली नहीं हो पाता है, तो बाकी एरियाज भी अफेक्ट होते हैं उससे। ओके, सो नाउ वी विल डू पेनिनसुलर प्लेटू, that is our next topic. So the peninsular plateau is tableland. Tableland, so that's one term that you should keep in mind. Tableland. Tableland means एक तरह से थोड़ा uplifted block टाइप की चीज है, ठीक है। जैसे आसपास का जो भी एरिया है तो एक uplifted block है टेबल लैंड, ठीक है। वेरी स्टेबल, बहुत एंशियंट ब्लॉक है ये। गोंड, जब आप आगे पढ़ोगे तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडियन प्लेट, और वहां से ब्रेक होकर के आया है, और ये जो टेबल लैंड पार्ट है ये उसी का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पेनिनसुलर प्लेटू, और ये अभी तक इंटैक्ट चला आ रहा है, फ्लोट करते हुए यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट कर गया किसकी तरफ, नॉर्दर्न डायरेक्शन। गोंडवाना लैंड आप देखोगे अटलांटिक की तरफ था, साउथ में था, एंड इट इज द ब्रोक अवे पार्ट, दैट इज द इंडियन प्लेटू, दैट इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट नाउ, क्रिएटिंग द हिमालयाज। So, and thus making it part of the oldest land mass है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हिमालयाज आर वेरी फेयरली न्यू स्ट्रक्चर, प्लेन्स आर इवन न्यूअर, और जो सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में आता है तो वो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया में। प्लेटू हैज broad and shallow valleys and rounded hills, ठीक है। राउंडेड हिल्स मतलब यहाँ पे ये कहने का, ये जो प्रॉपर्टीज बताई हैं इसका कहने का सेंस है कि इरोजनल एक्टिविटीज बहुत समय से चली आ रही हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक नेचुरल इक्विलिब्रियम में पहुंच गई हैं। तो जो वहाँ की रिवर्स फ्लो करती हैं उन्होंने ऑलरेडी काफी इरोड कर रखा है, ऊपर से जो स्टोन का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, जितना जो स्लोप है और जो स्टोन की हार्डनेस है उस हिसाब से उन्होंने इरोजन कर रखा है। तो यू हैव राउंडेड हिल्स एंड यू हैव शैलो वैलीज, मतलब बहुत ज्यादा अंडरकट नहीं कर रही हैं रिवर्स जो हैं, जैसे न्यूअर हिमालयाज वगैरह में गॉर्जेस वगैरह क्रिएट करती हैं, बहुत डीप अंडरकटिंग होती है रिवर के द्वारा, क्योंकि एक तो स्लोप बहुत ज्यादा है, ऊपर से मटेरियल जिससे बना है वो भी सेडिमेंट्री होगा तो कटिंग ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, शैलो वैलीज हैं, ब्रॉड हैं, लेकिन शैलो है लेकिन ब्रॉड है, मतलब काफी समय से एक इरोजनल एक्टिविटी चली आ रही है, अब उतना स्लोप भी नहीं बचा है कि नीचे की तरफ कट हो, तो एक फिक्स्ड चैनल में ऑलमोस्ट फ्लो कर रही है रिवर्स। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड डिविजन्स। अब इस प्लेटो का जो फर्दर डिविजन है उसको देखने जा रहे हैं, नेमली दी सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दी डेक्कन प्लेटो। तो इसके दो इंपॉर्टेंट टू ब्रॉड डिविजन्स, ठीक है, टू ब्रॉड डिविजन्स कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Vindhyan Range is bounded by the Satpura Range on the south and the Aravalis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region. So, okay, इतना हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रॉड डिविजन्स क्या कर दिया इन्होंने, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, अब उसका डायमेंशन बताना है किसका, सेंट्रल हाईलैंड का, नहीं द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर लाइन, में मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड का बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ है। देन विंध्यन रेंज इज बाउंड बाय, ये सब की टर्म है, मतलब ये जोग्राफिकल फीचर्स वहाँ हैं और उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस रीजन को। अरावलीज और सैंडियों की डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, इतना एरिया हम देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे है, सो इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, तो
पेनिनसुलर प्लेटू ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू ही है, ठीक है, ये पूरा ही एरिया आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, इंक्लूडिंग दिस आल्सो। ये बांग्लादेश वाला पार्ट छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर मालदा फॉल्ट आया था, बाकी इंक्लूडेड है। और इसमें दो ब्रॉड डिवीजन किया। ब्रॉड डिवीजन कौन सा है? एक है ये डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू इधर वाला एरिया हो गया, सेंट्रल हाईलैंड जो नॉर्दर्न वाला एरिया हो गया ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया आपका, ठीक है, ये वाला एरिया आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया। लेट मी चेंज द कलर। तो ये एरिया आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इधर देखिए सतपुरा, साउथ में सतपुरा विंध्या रेंज, तो एक तरह से सतपुरा रेंज जो है इसको आप मान सकते हो क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स जो यहाँ है और डेक्कन प्लेटू जो कि नीचे है, ठीक है, सतपुरा रेंज आप तरह से समझ सकते हो बाउंड्री की तरह। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, ठीक है, ये कवर कर रहा है। फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो इंडियन डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये डायमेंशंस बता रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के। और जो मालवा प्लेटू है ये आपका मेजॉरिटी यहाँ पे है, मालवा प्लेटू यहाँ पर आप देखोगे बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू ये सब भी हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के ही पार्ट है, बट मेजॉरिटी जो है ये सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट यहाँ तक आ गए, ठीक है, मालवा प्लेटू इज दी मेजर प्लेटू इन दिस रीजन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब रिवर्स बताया जा रहा है इसमें, तो रिवर्स इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कौन कौन सी रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स को ड्रेन करती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मान लीजिए ये डायरेक्शन लें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन एक तरह से होगा। अगर ये नॉर्थ है, अगर आप ऐसा सिस्टम फॉलो करते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ ऐसा डायरेक्शन होगा रिवर का, ठीक है, ये बता रहे हैं, दस इंडिकेटिंग दी स्लोप। तो रिवर जिधर से फ्लो करेंगी, किधर से रिवर फ्लो करेंगी, जैसा स्लोप होगा लैंड का वैसा ही रिवर फ्लो करेंगी। तो ये जो रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दिस यू हैव टू लोकेट ऑन द मैप। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लो? तो इनका देखिए चंबल रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन, राइट, गंगा में जाके मिल रही है, यमुना में या गंगा में जाके, यमुना फर्दर जाके गंगा में मिलती है। सो दिस इज द लैंड। तो ये अगर बाउंड्री मान लें तो इस बाउंड्री के इस साइड स्लोप कैसा हो गया, इधर की तरफ स्लोप है, दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड। सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किधर है, इधर है, इधर का स्लोप किधर है, इधर है, ऐसे रिवर्स आ रही हैं। जब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू तो इसका बताएंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट पीक्स मिलते हैं और इसका स्लोप किधर हो जाएगा, इधर होगा, इधर और इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है, पहाड़ी रिज है एक तरह से, तो इधर की सारी रिवर इधर फ्लो होके जाएंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और इधर की जो रिवर्स हैं, कुछ कुछ रिवर्स हैं, दे विल फ्लो, पेरियार एक्सेट्रा, दे विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, so there are fewer rivers this side and more river flowing this side, okay। तो यहाँ पर स्लोप ऐसे हो गया, यहाँ पर स्लोप ऐसे है, यहाँ पे स्लोप इस डायरेक्शन में, अंडरस्टूड। और सारे रिवर्स को मैप में लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। तो सेम जो हिमालयाज का था वही यहाँ पर भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का था सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होगा। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस of this plateau, eastward extensions of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, ठीक है, ये हमने बात की अभी, छोटे छोटे प्लेटूज हैं ये। द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो इनको एक बार हम लोग मैप में लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपका मालवा प्लेटू है, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में दामोदर रिवर बहती है, ठीक है, तो दैट इज दी, एंड ऑल ऑफ दिस आर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्यन रेंज इज विद इन सेंट्रल हाईलैंड, सतपुरा क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स, ब्रॉडली आप ऐसा बोल सकते हो।
for understanding purposes you can keep that in mind. Now coming to the Deccan Plateau. अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन में जो सेकंड पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का उसको देख रहे हैं. दैट इज डेक्कन प्लेटू. व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास lies to the south of the river नर्मदा. सो एक तो सतपुरा हो गया बाउंड्री टाइप का, और रिवर नर्मदा को भी बाउंड्री ले सकते हैं. ठीक है, रिवर नर्मदा कहाँ फ्लो कर रही है एक बार मैप में चेक कर लिया जाए. रिवर नर्मदा आपके सतपुरा और विंध्या के बीच में है. ठीक है, तो रिवर नर्मदा कैन ऑल्सो बी टेकन एज बाउंड्री. ठीक है, देन सतपुरा विल बी पार्ट ऑफ, in a way, part of Deccan Plateau. The Satpura range flanks its broad base. देखना Satpura range flanks means boundary के लिए बनाता है broad base in the north में, while the Mahadev, Kaimur and Maikal range form its eastern extension. मतलब पूरब में ये boundaries हैं जो एक तरह से आगे का extension है सतपुरा विंध्या का, महादेव, कैमूर and Maikal range. You have to locate in the map. Locate these hills and ranges in maps of India. एक बार देखते हैं इसमें अगर दे रखा होगा. देखिए महादेव हिल्स वगैरह हैं, सतपुरा के ही आगे महादेव, मैकल, ये इसी रेंज में जाएंगे. तो दैट इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स. तो हमने जो भी स्लोप का देखा कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन डेक्कन प्लेटू आल्सो मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वही स्लोप बताया जा रहा है. An extension of the plateau is also visible in the northeast. Again, an important fact. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau, and North Kachar Hills. It is separated by a fault from Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are Garo, Khasi, and Jaintia Hills. So this we discussed while discussing the Purvanchal Himalayas also, कि जो गारो खासी जयंतियां हैं they are not part of Himalayas, they are part of, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू के ये पार्ट हैं और पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है ये नॉर्थ ईस्ट में. तो ये वाला जो रीजन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नीचे का रीजन है, ठीक है, जो पहाड़ी रीजन है इधर का. तो दिस प्लेटू इज अगेन वेरी ओल्ड लैंड मास. इसका मतलब होने का क्या मतलब हुआ? इसका पार्ट होने का मतलब हुआ कि हिमालयाज आर वेरी न्यू, ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज इवन न्यूअर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है. तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा जब आप आगे देखोगे कि विच काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन विच रीजन, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत मिनरल रिच रीजन है. तो वो मिनरल्स यहाँ भी आपको मिलेंगे, गारो खासी जयंतिया एंड करबी एंगलोंग, नॉर्थ कचहर हिल्स. तो जो भी ये रीजन है प्लेटू, और बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट मतलब यहाँ पे कुछ ब्रेक आया और ये टूट के अलग हो गया है, और जिस गड्ढे में नदियों ने पानी भर भर के सेडिमेंट्स भर भर के प्लेन्स बना दिए. ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्ट आया और उस फॉल्ट मतलब बेसिन हो गया. उस बेसिन से रिवर्स फ्लो कर रही है, गंगा भी आ रही है, ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, तीस्ता भी आ रही है. तो उन रिवर्स ने यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करके प्लेन्स क्रिएट कर दिया है. तो बीच में प्लेन्स आ गए विच इज न्यूअर स्ट्रक्चर जियोलॉजिकली, बट दोनों साइड उसके क्या है, डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट है. ओके, सो अब हम लोग डेक्कन प्लेटू के प्रोमिनेंट फिगर्स को देख रहे हैं. सो व्हाट आर द प्रोमिनेंट aspects that we should refer to in Deccan Plateau? Western Ghats and the Eastern Ghats. ठीक है, mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau. तो डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न, ऊपर का हमने नॉर्थर्न और ईस्टर्न देख लिया था. अब वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री क्या है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous. Which are continuous? Western Ghats are continuous and can be crossed only through passes. Okay, through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map. So this is again very important. Map में आपको locate करना है. What is being told here? कि डेक्कन प्लेटू है, इसका वेस्टर्न मार्जिन ये देखिए जो रेंजेस दिखा रखी हैं, तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है. अब देखिए यहाँ पर एक गैप है,
यहाँ एक गैप है। तो केवल इन्हीं गैप्स के थ्रू आप इस रीजन से इस रीजन में जा सकते हैं, इस रीजन से इस रीजन। बाकी इतना कंटिन्यूअस है कि इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट गो, बट गोइंग बाय लैंड विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द टेरेन विल नॉट बी suitable for making roads etc. So you need passes, gaps, where जहाँ माउंटेन रेंज के बीच में गैप होगा वहीं पे आप रास्ता बना सकते हो। तो those are referred as passes, okay? अब passes को हम लोग ऊपर क्या बोल रहे थे, नॉर्थ में ला टर्म यूज होता था, क्योंकि तिब्बतन में पा का ला, पास का ला होता है। यहाँ सदर्न में आप देखोगे घाट टर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है? घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो ये सारे पासेस हैं जो कि कोस्टल रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं मेनलैंड से, ठीक है? प्लेटू से कनेक्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू लोकेट दोज ऑन द मैप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? Their average elevation again important figure, you should have idea of this, 900 to 1600 meters। और जो ईस्टर्न घाट्स है उनका कितना है, 600 meters ईस्टर्न घाट्स का है। The eastern ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south। इसको लोकेट कर ले रहे हैं एक बार। आप अगर देखोगे तो महानदी वैली ये है, महानदी वैली, और नीलगिरीज ये है, यहाँ पे है नीलगिरी, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक करीब, और इसमें बहुत सारे बहुत इरोडेड है ये, हाइट भी इसकी कम है, और डिसकंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा रेंज है। आप देख रहे हो बहुत जगह पे नहीं मिलेगा आपको बीच में। बट यू शुड हैव अ प्रोमिनेंट आइडिया ऑफ व्हाट आर द प्रोमिनेंट पीक्स इन दिस, प्रोमिनेंट रेंजेस, नल्लामला एटसेट्रा, एंड you should also know the order from north to south of such ranges in the Eastern Ghats. So the next feature, the Eastern Ghats are discontinuous, as we saw in the map, discontinuous and irregular and dissected by various rivers. Now you know why they are irregular and discontinuous, because they are being dissected by rivers draining into the Bay of Bengal। तो बहुत सारी rivers जो कि slope इधर का है वहां से आ रही हैं, उन्होंने erode किया है। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghats are known by different local names। ठीक है, अभी इस पे हम लोग जाएंगे। Orographic rain, तो रेन्स, अगर इफ यू नो अबाउट कि डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशंस होते हैं, ओरोग्राफिक, हाँ, मॉनसूनल, साइक्लोनिक रेनफॉल्स आर आल्सो देयर एंड सो ऑन। सो उसी में से ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, तो आपके पास ये यहाँ पे कंटिन्यूअस रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट, और इसकी हाइट कितनी है, 900 टू 1600 मीटर्स। तो इफ यू सी, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इस डायरेक्शन से आता है, अरेबियन सी ब्रांच, वो इस डायरेक्शन से आएगा। दे विल डायरेक्टली गो एंड कोलाइड विद वेस्टर्न घाट्स, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। इससे क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है। वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सामने जा नहीं सकते हैं, तो दे विल अपलिफ्ट करेंगे, तो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो वो सारी बारिश क्या होगी, कोस्टल साइड में होगी, पहाड़ी के वेस्टर्न घाट के इस साइड होगी, कोस्टल साइड में। और दूसरी साइड क्या होगा, जब दूसरी साइड पहुंचेगी ये विंड, तो वो ऊपर से फिर नीचे आएगी तो वार्मिंग होगी, एडियाबैटिक वार्मिंग होगी, और इस वजह से, वार्मिंग होने की वजह से उनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दिस वजह, और कंडेंसेशन नहीं होगा। एंड दैट्स वाई ये जो होते हैं ये ड्रॉट प्रोन रीजन्स होंगे, यहाँ पर बारिश कम होगी, यहाँ पे पानी रेन शैडो रीजन होगा, और यहाँ बारिश कम होगी, और इस साइड बारिश बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? सो दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब डिफरेंट लोकल नेम्स वेस्टर्न घाट्स का बता रहे हैं, सो यू जस्ट शुड हैव द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, डिफरेंट लोकल नेम्स हैं, ठीक है? ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। The height of the Western Ghats progressively increases from the north to south। अब नॉर्थ टू साउथ, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ में आओगे तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट इंक्रीज होगी। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड अनाईमुदी, दिस यू शुड नो, अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक, दोदा बेट्टा, देन
Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. Eastern Ghats में कौन सी है? Mahendragiri. Shevaroy Hills and Javadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. Southeast of the Eastern Ghats. Locate the famous hill stations of. Now you should know these names because they can be directly asked in the questions. Udagama Mandalam. Udagama Mandalam, which is popularly known as Ooty and Kodaikanal. Okay, so these are located where that you have to find out in the map. One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil. अब एक और कैरेक्टरिस्टिक चीज आ गई, ब्लैक सॉइल यहाँ मिलता है, नोन एज डेक्कन ट्रैप. किस एरिया में मिलता है? डेक्कन ट्रैप. दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन. अब ब्लैक सॉइल कहाँ से बना है? क्योंकि वहां पे आप पढ़ोगे तो डेक्कन ट्रैप, ट्रैप इटसेल्फ इज अ वर्ड, क्योंकि वहां पे फिशर इरप्शन हुआ था. व्हाट इज फिशर इरप्शन? जब कहीं एक हॉरिजॉन्टली लंबा एक कट आता है सरफेस में और वहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो बहुत लिक्विड फ्लोई लावा है, जो बहुत तेजी से फ्लो करती है. ठीक है, ऐसा कुछ इरप्शन नहीं है, फिशर के थ्रू इरप्शन होता है और ये लावा फ्लो करके बहुत दूर तक किलोमीटर्स में फ्लो कर जाती है. अब चूंकि फ्लो करते करते एक लेयर बनेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है, स्टेप्स लाइक. तो इसी को ट्रैप्स बोलते हैं. ठीक है, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं. अब जो ऊपर का एरिया है, ऊपर का रॉक है, इग्नस रॉक है, ये लावा, दैट इज इग्नस रॉक डायरेक्टली. और व्हेन इट विल इरोड इट विल फॉर्म ब्लैक सॉइल. ठीक है, दैट अगेन इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल इन इंडिया. It has different distinct properties of humidity capturing, बहुत clay होता है, and that's why it is suitable for growing cotton, sugarcane, etc. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margin of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. तो अरावली को लोकेट कर लेते हैं हम लोग. So if you locate Aravalli range is here and this is western and एक तरह से ये गुजरात से, ये तो जो विजिबल रेंज है वो बता रहा है, बाकी इरोडेड फॉर्म में यहाँ से दिल्ली तक जाता है. ठीक है, तो दिस फॉर्म्स द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. जो प्लेटू है इसका वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है और ये इरोडेड है मोस्टली. इन दिल्ली ऑल्सो यू विल फाइंड दिल्ली रीजेस, some locations in Delhi you will find that you can see the eroded hills. Okay, so we will complete this part here and we will, for the remaining part of this chapter, this is a longer chapter, we will meet in the next lecture. Thank you.